سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز کے باوجود نذیر چوہان کو پیش نہیں کیا گیا۔ اسپیکر پرویز الہی برہم ہو گئے، وزیر قانون کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ اسپیکر پرویز الہی نے نذیر چوہان کے پیش ہونے تک قانون سازی کا کام روک دیا۔ اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قذافی بٹ بتائے گا کیا کہنا ہے اسپیکر پرویز الہی کا؟ دیکھیں، اسپیکر پرویز الہی نے آج بڑی مختصر اور جامع بات کی۔ اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور اجلاس شروع ہوتے ہی انہوں نے وزیر قانون بشارت راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ریمارکس پاس کیے کہ لگتا ہے کہ جو پروڈکشن آرڈر نذیر چوہان کے جاری کیے تھے ان پر آج بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیوں ایسا ہی ہوا؟ صرف اتنے الفاظ کے راجہ بشارت نے اس کے اوپر صرف سر ہلایا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اتنے الفاظ ادائیگی کے بعد پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے پیر کی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ کل اسپیکر پنجاب اسمبلی نے واضح کیا تھا حکومت کے اوپر کہ اگر ایوان کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو کوئی قانون سازی، کوئی کارروائی جو ہے ایوان کے اندر نہیں ہوگی۔ روزانہ اجلاس ہوگا اور جب تک جو ایوان نے احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، اسی طرح اجلاس روزانہ کی بنیاد پر ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پر عمل درآمد ہونے تک، فیصلے کے عمل درآمد ہونے تک ملتوی ہوتا رہے گا۔ قذافی بٹ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اس پر رد عمل کی بات کریں تو کراچی کی تاجر برادری نے سندھ میں لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے چھوٹے تاجر مزید متاثر ہوں گے۔ کس سے مدد طلب کریں گے؟ کیا حکومت سندھ ان لوگوں کے گھروں تک ضروریاتی زندگی پہنچائے گی جو اب گھر میں بند ہیں؟ ڈیلی وہ باہر نکلتے، کراچی میں 45 لاکھ ایسے لوگ ہیں جو روز کماتے اور روز کھاتے ہیں۔ 6 بجے سے دورانیہ کاروبار کا 8 بجے بڑھا دیں تاکہ یہ جو سڑکوں پر ایک رش ہے، ازدحام ہے، یہ کم ہو سکے۔ علاج لاک ڈاؤن نہیں ہے، اس کا علاج ویکسینیشن ہے، لیکن یہ لاک ڈاؤن نہ کرے۔ چھوٹے تاجران جو ہیں اس کو بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، اور یہ اگر کووڈ سے نہیں مریں گے تو بھوکوں سے مر جائیں گے، جو اس وقت حالات ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت ٹاسک فورس کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں، سندھ بھر بالخصوص کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ تاجر برادری کی طرف سے اس فیصلے کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں۔ حکومت اپنی نااہلی چھپانے کے لیے چھوٹے تاجروں پہ مکمل لاک ڈاؤن کر ان کا معاشی قتل کر رہی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج بھی لوگ ویکسینیشن کے لیے جو گئے ہیں وہاں ویکسینیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو واپس کیا گیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو اجلاس ہوا، اس میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کل وزراء کے ساتھ کہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات بھی ہوگی اور جو نوٹیفیکیشن پچھلا ہے اس میں چینجز لا کے کاروباری وقت بڑھانے کی اجازت دی جائے گی۔ آج جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں فیصلہ ہوا، ہم اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ یہ کراچی کے ساتھ تاجر دشمنی کی جا رہی ہے، کراچی کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن معیشت تباہ کر دے گا۔ مکمل لاک ڈاؤن یہ ہب ہے، کراچی مین ہب ہے، یہیں سے امپورٹ، یہیں سے ایکسپورٹ، تو یہ ہب ہے۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ سے درخواست کروں گا کہ مکمل لاک ڈاؤن پبلک روڈ پہ آ جائے گی اگر اس طرح ہوا تو، کیونکہ کھانے کو نہیں ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی تھوڑا اس پہ غور کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے میری درخواست ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کی طرف نہ جایا جائے۔ اور کراچی کے شہری تو صاف پانی سے محروم ہیں ہی، لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین کی کالونی کے رہائشی بھی پانی سے محروم ہیں۔ یہاں بھی ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں آزاد نوڑیوں سے جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ملازمین کے رہائشی کالونی میں موجود ہیں۔ آزاد نوڑیوں اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے شہری تو پینے کے پانی سے بےتاب ہیں، لیکن میں اس وقت اس مقام پر موجود ہوں۔ یہ ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس، جہاں کا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی کالونی، جہاں پر سرکاری ملازمین یہاں پر رہائش پذیر ہیں۔ لیکن یہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سرکاری ملازمین جو وزیر اعلیٰ پورا صوبہ چلاتا ہے، لیکن اس کے جو سرکاری ملازمین وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملازمت کرنے والے وہ بھی پینے کے پانی سے بےتاب ہیں۔ یہ بھی جو ہے ٹینکر کا پانی استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو ان کی لائن یہاں پر لگی ہوئی ہے یہ کئی ماہ سے بند ہے۔ ان کی شکایت یہ ہے کہ پہلے یہاں ان کو پانی فراہم کیا جاتا تھا، لیکن کئی وقت سے واٹر بورڈ انتظامیہ کو شکایت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہاں کا ایک سرکاری ملازم ہے
सीएम हाउस का मौजूद है, उनसे जानते हैं मामला क्या है, क्यों पानी बंद है। मुझे कब से पानी बंद है, मामला है क्या? भाई मामला ये है कि इस लाइन में पानी आता था, 2-3 महीने से हम परेशान हैं। इर्द गिर्द सब लाइन में पानी आता है, कमिश्नर हाउस में आता है, चीफ सेक्रेटरी हाउस में आता है, सामने जो है ना जजों का बंगला है, यहाँ पर 24 घंटे पानी आता है। हमारी लाइन का पानी जो है 2 महीने नहीं आया, उस वक्त हम चीखे, सीएम हाउस से भी कुछ महीने हमने फोने कराई। ये पूरा सूबा चलाने वाला वज़ीर हाउस है, वज़ीर हाउस है जहाँ पर यहाँ की जो मुकामी कॉलोनी है, जहाँ पर सरकारी मुलाजमिन बसते हैं, यहाँ के जो मुलाजमिन वो भी पीने के पानी से बेताब हैं। और वाटर बोर्ड इंतजामी घाटा धर्मी ये है कि वज़ीर हाउस से शिकायत जाने के बावजूद इनको पानी फराहम नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद इनका मुतालबा ये है कि सिंध सरकार फौरी तौर पर वज़ीर हाउस इस मामले का एक्शन ले और वाटर बोर्ड इंतजामी के खिलाफ कार्रवाई करे। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने कई बार शिकायत की लेकिन उसका अजाला नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया आपका। 15 रुकनी अफगानी मीडिया के वफ़द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 15 रुकनी अफगानी मीडिया वफ़द ने मुलाकात भी की। आर्मी चीफ का कहना था कि मीडिया अवामी, समाजी और सकाफती राबतों में पुल का किरदार अदा कर सकता है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम दुश्मनों की निशानदही करके उसे शिकस्त दे। 15 रुकनी अफगानी मीडिया के वफ़द ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR का ये कहना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानी मीडिया वफ़द ने मुलाकात भी की है। इस मौके पर आर्मी चीफ का ये कहना था कि मीडिया अवामी, समाजी और सकाफती राबतों में पुल का किरदार अदा कर सकता है। मज़ीद जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। सगीर चौधरी, आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा, आर्मी चीफ की अफगानी मीडिया के वफ़द से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगानी मीडिया के जो 15 रुकनी वफ़द थी उससे एक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो है वो GHQ में हुई है, SPR की जानिब से कहा गया है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 15 रुकनी अफगानी मीडिया वफ़द की से जो मुलाकात की है उसमें अहम नौयत की मामला, जिसमें मीडिया अवामी, समाजी और काफी रास्तों में पुल का किरदार अदा कर सकता है, आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया। और कहा गया कि मीडिया की जिम्मेदारी है अमन दुश्मनों की निशानदेही करके उसको शिकस्त दे। जी बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी अपडेट करने के लिए। ख़वातीन के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात पर कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी हो गई। शेरी मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन में सोच बढ़ रही है कि यहाँ वो महफूज नहीं। ये नहीं हो सकता कि 4 दीवारी में आप बीवी पर तशद्दुद करें। खुर्रम दस्तगीर बोले कि वज़ीर आज़म के बयानात से जराइम की हौसला अफजाई होती है। इंसानी हकूक जो बच्चियों के ख़वातीन के हैं उनको रिस्पेक्ट करे। ये नहीं हो सकता कि जी चादर और 4 दीवारी में आप औरतों को मार दें, पीट लें क्योंकि आप उसके खावंद हैं। नहीं, ये नहीं एक्सेप्टेबल। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे मत डालें जिससे वो बेचारी विक्टिम की फैमिली जो ऑलरेडी इतने बुरे वक्त से गुजर रही है कि उनको और तकलीफ पहुंचे। ये रवैये 21वीं सदी में अब हमें मिलकर खत्म करने और अपने खवातीन की सिर्फ इज्जत का दिफा नहीं करना, उनके हकूक का दिफा करना, उनके राइट्स का दिफा करना है। और पाकिस्तान की जो खवातीन शहरी हैं उनको भी राइट टू लाइफ उतना ही है, उनको भी राइट टू प्रॉपर्टी उतना ही है, उनको भी राइट टू प्रोटेक्शन उतना ही है जितना पाकिस्तान के और शहरियों को। वजीर आजम जिम्मेदार है, वजीर दाखिला जिम्मेदार है। हमें इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। कराची की 6 के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि DNA टेस्ट आने के बाद मुजरिम की शनाख्त के बारे में आगाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि कातिल को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। जाए और कचरे में फेंक दिया जाए मासूम बच्ची के, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा घटिया और जलील जुर्म कोई नहीं हो सकता कि जहाँ पे 6 साला बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद उसे मार दिया जाए और कचरे में फेंक दिया जाए। मासूम बच्ची के साथ जो जुर्म किया जिस दरिंदे ने, उसे गिरफ्तार किया है। DNA के बाद उसका नाम और उसकी बाकी कवायद ज़ाहिर कर दिए जाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुझे अपनी अदालतों से पूरी कभी उम्मीद है कि इस शख्स को करार वाकई सज़ा और ऐसी सज़ा इसको दी जाएगी कि जिससे इस तरह के किसी जुर्म का इरादा रखने वाले की भी रूह कांप जाए। कोरंगी में 6 साला बच्ची कत्ल केस का अहम मुलजिम सोहराब गोट से पकड़ा गया। मुलजिम जाहिद ने बच्ची की लाश कचरा कुंडी में फेंकी थी। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है और इससे मजीद तहकीकात भी की जा रही हैं। कोरंगी में 6 साला बच्ची कत्ल केस का अहम मुलजिम सोहराब गोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 4 के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में तेजाब के गैलन से भरी पिकअप उलट गई और तेजाब सड़क पर फैल गया।
कराची लियाकताबाद नंबर 4 के करीब दो गाड़ियों के दरमियान तसादुम में केमिकल और तेजाब के गैलनों से भरे पिकअप उलट गई। केमिकल और तेजाब सड़क पर फैल गया। शहरी इंतजामिया ताहाल मौके पर न पहुंच सकी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत पिकअप और तेजाब से भरे गैलनों को सड़क से हटाया। तेजाब का नाम है गंधक। अगर किसके साथ किसी के चेहरे पे ये गिर गया या कोई इसके ऊपर गिर गया क्या हाल होगा? इसके ऊपर है जुर्माना। ये लोग क्यों इसका नहीं पूछे? खुला आम रोड के ऊपर ले जा रहे, क्यों ले जा रहे भाई? इधर कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत नुकसानदेह और बहुत खतरनाक केमिकल है। आप देख रहे हैं काफी देर से गिरा हुआ है, उसके बावजूद जो है ना अभी तक इसमें से धुआं उठ रहा है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक तेजाब होगा, लेकिन कोई आया नहीं इसका हटाने के लिए, सफाई करने के लिए। वाक़े के बाद पुलिस ने पिकअप थाने मुंतकिल कर दी। पुलिस हुक्काम का कहना है तफ्तीश की जाएगी कि तेजाब कहाँ जा रहा था और किसकी गलती से हादसा हुआ। केमिकल की मुंतकली के लिए खसूसी इजाज़त नामा दरकार होता है जो ड्राइवर के पास मौजूद नहीं था। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ शाहजेब हुसैन, 24 न्यूज़, कराची। अवाम महंगे पेट्रोल के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाएं। पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफे की तजवीज़ है। ओगरा ने पेट्रोल ₹1.71 फ़ी लीटर इजाफे की सिफारिश कर दी है। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफे की सिफारिश की गई है। अवैस के आने से मज़ीद जान लेते हैं। अवैस, क्या कहा गया है ओगरा की जानिब से? जो असम्बली भिजवाई गई है अपना हुकूमत को, पेट्रोलियम डिवीजन ऑफ फाइनेंस को, उसके मुताबिक पेट्रोल जो है ₹1.71 फी लीटर मजीद महंगा करने की सिफारिश की गई है। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी इजाफा तजवीज़ किया गया है। मिट्टी का तेल 35 पैसे और लाइट डीजल ऑयल जो है वो 24 पैसे फी लीटर जो है वो महंगा किया जाए। हाई स्पीड डीजल की कीमत में मामूली कमी की भी तजवीज़ दी गई है, ₹2.27, लेकिन इसका हतमी जो फैसला है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल करेंगे। और बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।